جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب؟ جی ہم پٹنہ سے بول رہے ہیں۔ جی پٹنہ سے بول رہے ہیں، میں علی حسن، محمد علی حسن۔ پٹنہ سے؟ کچھ دن پہلے آپ سے بات کیا تھا۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی حسن۔ محمد علی حسن۔ ہاں جی جی بتائیے۔ کہ میں آفس میں ابھی بہت ویست چل رہا ہوں، 5 تاریخ کے بعد بات کرنے کے لیے تو پھر۔ اچھا بتائیے۔ اور کیسے ہیں؟ ہاں اصل میں جب آپ کا فون شاید آیا تھا تو ہم آفس کے کام سے باہر گئے ہوئے تھے ٹور پہ، تو وہاں پہ آواز صاف نہیں آ رہی تھی، تبھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعد میں کال کیجیے گا۔ جی بتائیے شیخ۔ اور ابھی ہے نا وقت آپ کے پاس؟ ہاں وقت ہے، بتائیے کیا مطلب زیادہ لمبی بات کرنی ہے؟ میں یہ بات بول رہا ہوں کہ ذکر کا نماز پڑھنے کے لیے قرآن حدیث کے دائرے سے کیا کرتی ہے؟ وطر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وطر کی نماز جسے قرآن اور حدیث جو ہے، حدیث سے میں نے کیا ثابت ہے کہ ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے، یہ میں بول رہا ہوں آپ سے۔ اچھا طریقہ جاننا ہے وطر کی نماز کا؟ جی اچھا بھائی دیکھیے، جو وطر کی نماز ہے، ٹھیک ہے، وطر کا معنی ہوتا ہے اوڈ، یعنی کہ طاق، اور اللہ تعالیٰ طاق ہے، وطر ہے، اور اللہ کو طاق اور وطر بہت پسند ہے، ٹھیک۔ تو وطر کوئی الگ سی نماز بھائی نہیں ہے، وطر جو بھائی یہ نماز ہے، یہ ایکچوئل میں اس کا نام ہے قیام اللیل، ٹھیک، جس کو مطلب جیسے الگ الگ پارٹ میں جب پڑھتے ہیں، یعنی کہ رمضان میں اگر عشاء کے بعد، ٹھیک، رمضان میں اگر عشاء کے بعد فوراً پڑھتے ہیں اور 4 رکعت کے بعد بیچ میں آرام کرتے ہیں، تو اسی رات کی نماز کا نام ہوتا ہے عرف عام میں تراویح۔ اور جب اسی رات کی نماز کو ہم رات کے تیسرے پہر میں پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تہجد۔ اور جب یہ رات کی جو نماز ہوتی ہے، ان کی جو مطلب جو بھی تعداد ہوتی ہیں، رکعت ہوتی ہے، ان کو طاق کرنے کے لیے جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں وطر۔ تو جو یہ وطر کی جو بھائی رکعتیں جو ثابت ہیں اللہ کے نبی سے، وہ ہیں 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت، یہاں تک اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو 1 رکعت پڑھنے کا تو جو بھائی طریقہ ایک دم آسان ہے، ٹھیک، 1 رکعت آپ اپنا بھائی پڑھ لیں گے، اور مطلب اس میں ایک ہی قاعدہ ہوگا، اور دونوں طرف بھائی وہ دائیں بائیں جانب سلام پھیر کے 1 رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ مین جو مدعا ہے وہ ہے 3 رکعت کی وطر پڑھنے کا، اور عام طور پہ مطلب زیادہ تر لوگ جو پڑھتے ہیں نماز وہ 3 ہی رکعت پڑھتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے حنفی مسلک میں ہے، ان میں خالی جو وطر ہے وہ ادھکتر پڑھتے ہیں 3 رکعت، لیکن ان کی جو حنفی فقہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں صاف صاف بھائی یہ آیا ہوا ہے کہ وطر 1 رکعت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو ہدایہ میں ان کی لکھا ہوا ہے کہ وطر 1 رکعت بھی ہے۔ تو لیکن مطلب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ خالی پڑھتے ہیں 3 رکعت، اور ان کی جو 3 رکعت پڑھنے کا طریقہ ہے وہ تو آپ ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں۔ ہاں، تیسرے رکعت میں جیسے میں نے تہجد کے بعد تیسرے رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے آدمی، الحمد شریف پڑھ کر اور قل هو اللہ پڑھ کے اور ہاتھ چھوڑ کے پھر میں نے رفع دین کرتا ہے آدمی۔ تو اب دیکھیے یہ جو حنفی مقلد ہیں، ان کا دوگلا پن کیا ہے، ایک طرف کہتے ہیں رفع دین منسوخ ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں، گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت مت کرو، نماز میں سکون اختیار کرو، اسکنوا فی الصلاۃ۔ تو وہ لوگ بھائی اس حدیث سے قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جو رفع دین ہے اس کو ہم کو بھائی نہیں کرنا ہے، یہ جو عمل ہے بہت ہی مطلب بیکار عمل ہے،
घोड़ों की दुमों ऐसा अमल है। तो एक तरफ तो भाई कहेंगे कि नहीं भाई ये मनसूख हो गया, लेकिन अपनी मस्जिद में जब वितर की नमाज पढ़ेंगे रमजान में खास तौर से जमात के साथ, तो बराबर मेरे भाई तीसरी रकात में रफादैन करेंगे। जहाँ करना साबित है वहाँ कभी नहीं करेंगे, और जहाँ साबित ही नहीं वहाँ पे करेंगे। अब सुनिए, वित्र की तीसरी रकात में जिस तरीके से हनफी लोग रफादैन करते हैं एक्स्ट्रा वाला, ये किसी हदीस से साबित ही नहीं है, ना सही हदीस और ना ही मेरे भाई ज़ईफ हदीस, ये बात आई नहीं है कहीं पे। अब जो इनकी जो मेरे भाई तरीका है, वो इन्होंने इस तरीके को अपनी अकल से बना लिया। कैसे? क्योंकि अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया कि अपनी वित्र को मगरिब से अलग करो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा यार मतलब जो 3 रकात है भाई, 3 रकात है वित्र, और जो मगरिब की पढ़ते हैं फर्ज हम लोग, वो भी 3 रकात है, और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अपनी वित्र को मगरिब से अलग करो, अलग बनाओ। तो इन्होंने क्या किया, अलग करने के लिए इन्होंने तीसरी रकात में एक फर्जी का जो होता नहीं है रफादैन, उसको बीच में लिया है, और उसके बाद कहने लगे देखो वित्र को हमने अलग कर दिया मगरिब से। अब अल्लाह के नबी अगर कह रहे हैं कि अपनी वित्र को मगरिब से अलग करो, तो अल्लाह के नबी ने भाई करके बताया होगा ना साहबा इकराम को, या अपनी अकल से हम रफादैन कर लेंगे और अपने आप से बोल देंगे कि हाँ अलग हो गई। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 रकात वित्र पढ़ने के 2 तरीके हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित है हदीस से। सुनिए ना, एक मिनट को क्वेश्चन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। भाई जोर से बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माने साबित है कि भाई मगरिब के और वितर से कुछ माने डिफरेंट होना चाहिए, है ना? हाँ, तो जैसे ये हदीस माने हदीस का दलील होगा ना? हाँ मेरे भाई, बहुत जगह हदीस से आई हैं कि अपनी वित्र को मगरिब से अलग करो, और ये बिल्कुल सही हदीस है। ठीक है, हवाला इस समय हमारे मतलब उसमें नहीं है, जहन में नहीं है, लेकिन ये हदीस मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह के नबी जब कह रहे हैं कि अपनी वित्र को मगरिब से अलग करो, अलग बनाओ, तो अल्लाह के नबी ने बताया भी होगा, सहाबा को समझाया भी होगा, करके दिखाया भी होगा कि हाँ ऐसे अलग करना है। मन माने अपनी अकल से अलग थोड़ी ना कर देंगे कि हाँ मगरिब की 3 रकात ऐसे है और जो वित्र की 3 रकात है लाओ उसमें हम तीसरी मतलब जो आखिरी हमारी जो है रकात उसमें हम रफादानी स्टार्ट कर दें तो वो अलग हो जाएगी। तो अपनी अकल से अलग नहीं करना है। अलग करने के 2 तरीके साबित हैं, यानी कि वित्र की नमाज पढ़ने के 2 तरीके साबित हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है कि अब इसको गौर से एकदम सुनिएगा, अगर इसको समझ गए तो सारा खेल आप समझ जाएंगे। ठीक, 3 रकात वित्र पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि 3 रकात वित्र 1 सलाम से, दूसरा तरीका है 3 रकात वित्र 2 सलाम से। यानी कि अब इसको और आसान करते हैं। पहला तरीका है 3 रकात वित्र 1 कायदे से, दूसरा तरीका ये है कि 3 रकात वित्र 2 कायदे से। अब मैं आपको तरीका ओपन आपको बताता हूँ। पहला तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि 3 रकात वित्र 1 सलाम 1 कायदे से। अब ये कैसे पढ़ना है भाई, पहले अपना हम 1 रकात पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरी पढ़ेंगे। दूसरी में जो कायदा होता है, कायदे में बैठेंगे नहीं, फिर से खड़े हो जाएंगे तीसरी के लिए। तीसरी के बाद जब बैठेंगे तब उसमें 1 कायदा करेंगे और उसमें एक ही बार दाएं बाएं जानिब सलाम फेर देंगे। इसको कहते हैं 3 रकात वित्र 1 सलाम से, यानी कि 1 कायदे से। अब जो दूसरा तरीका ये है कि जो 3 रकात है वित्र उसको 2 सलाम से, यानी कि 2 कायदे से। यानी कि पहले आपने 2 रकात पढ़ी, कायदे में बैठे, दाएं बाएं जानिब सलाम फेर दिया, उसके बाद फिर से आप खड़े होंगे, 1 रकात पढ़ेंगे, फिर से कायदे में बैठेंगे, दाएं बाएं जानिब सलाम फेर देंगे। तो ये हो गया
3 रकात वित्र 2 सलाम से और 2 कायदे से। तो ये 2 तरीके अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है। इनमें से जो आपको आसान लगे आप उसको पढ़ो। अब वित्र में जो भाई हम लोग पढ़ते हैं दुआए कुनूद, तो जिसको आती है याद है वो उसको पढ़े, जिसको नहीं आती है तो वित्र की नमाज में दुआए कुनूद पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट भाई वो नहीं है, ठीक। लेकिन इसको याद कर लें, अच्छी चीज है, और जो साबित है उसको याद कर लें, ठीक है। बाकी जो अल्लाहुम्मा इन्नी जो मतलब याली है दुआए कुनूद, ठीक है, वो भी चलिए ठीक है, लेकिन और भी हैं, ठीक है, तो उनको याद कर लें। तो वित्र की नमाज में जब हमको दुआए कुनूद पढ़ना है तो दुआए कुनूद पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तो भाई अपने दोनों हाथों को छाती की तरफ उठा के दुआ की शक्ल में भाई हमको पढ़ना है, आप समझ रहे हैं। आखिरी रकात जो वित्र की होती है उसमें अल्लाह के नबी सूरे इखलास पढ़ते थे, यानी कि कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते थे आखिरी रकात में। अब अगर आप 1 रकात पढ़ लें तो उसमें आप पढ़ेंगे कुल हु अल्लाहु अहद, 3 रकात पढ़ लें तो तीसरी में पढ़ेंगे, 5 रकात पढ़ लें तो 5वीं में, 7 रकात पढ़ लें तो 7वीं में, 9 रकात पढ़ लें तो 9वीं में। यानी कि आखिरी जो अल्लाह के नबी पढ़ते थे वित्र की रकात उसमें सूरे इखलास पढ़ते थे कुल हु अल्लाहु अहद। तो इसको पढ़ने के बाद आप दोनों हाथों को छाती की तरफ मतलब छाती के सामने उठाएंगे, जैसे दुआ मांगते हैं, उसमें आप पढ़ेंगे दुआए कुनूद। या तो आप अपने हाथ बांधे बांधे भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके साबित हैं। अब वित्र जब आप पढ़ लेंगे तो जो साबित है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अल्लाह के नबी की अहम सुन्नत है, जब वित्र आप पढ़ लें तो आप 3 बार कहेंगे सुबहान मलकुल कुद्दूस, सुबहान मलकुल कुद्दूस, और तीसरी बार जब आप कहेंगे तो थोड़ा उसको खींचेंगे, सुबहान मलकुल कुद्दूस, को खींचना है ना। हाँ, और उसके बाद आप कहेंगे रब्बिल मलाइकत तवर्रु, हाँ समझ रहे। तो ये पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप किसी दिन आराम से फोन कीजिएगा तो मैं आपको 5 रकात वित्र का तरीका, 7 रकात वित्र का तरीका, 9 रकात वित्र का तरीका, मैं इंशाल्लाह सब कुछ आपको बताऊंगा। इस समय थोड़ा भाई खाने का टाइम हो रहा है, अब्बा इंतजार कर रहे हैं। ना मैं बस 1 मिनट आपको वक्त ले रहा हूँ। जी बताइए। तो पहला रकात में अल्हम्दु और कोई सूरा पढ़ लिया, ठीक है। नहीं, वो अल्लाह के नबी से मतलब भाई पहली रकात में मतलब एक मतलब अलग खास सूरा है और दूसरी में अलग खास सूरा है, आखिरी में अलग खास सूरा है। तो आखिरी वाला हमको इस समय याद है कि अल्लाह के नबी जब आखिरी पढ़ते तो उसमें सूरे इखलास पढ़ते। बाकी आप चाहें तो मेरे भाई कोई दूसरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन भाई जो अपने नबी से मतलब ज्यादा मोहब्बत करता है, अगर हमारे भाई वो नबी ने वित्र की नमाज में आखिरी में रकात में उन्होंने सूर्य इखलास पढ़ी है तो हम भी कोशिश करें कि हम सूर्य इखलास पढ़ें। अब मानिए हम भूल गए, हमने कोई और पढ़ ली, तो ऐसा नहीं कि नमाज हमारी होगी नहीं, नमाज हमारी हो जाएगी, आप समझ रहे हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि तशहुद में बैठ कर और माने उसके बाद उठेगा आदमी तो वही अल्हम्दुलिल्लाह सही का सूरा इखलास पढ़ कर और वो अपना जो है दुआ कमी कर सकते, यही ना। हाँ, उसमें हाथ माने वो लोग के जैसा छोड़ना ये करना नहीं ना है ना। नहीं, जैसे हनफी लोग भाई पढ़ते हैं वित्र की नमाज 3 रकात, वैसे तो पढ़ना ही नहीं है, वो तो साबित ही नहीं है, ना सही हदीस से ना ज़ईफ हदीस से। भाई जब उनके नजदीक मेरे भाई रफ़ात मंसूख हो गया है तो ये वित्र की नमाज में कहाँ से लेके आए भाई। ये घोड़ों की दुमों वाला अमल काहे के लिए कर रहे हैं। मतलब एक जगह मतलब भैया सुकून इख्तियार करना चाहिए उस कुनूफी सलाह, और वित्र की नमाज में सुकून हमको इख्तियार भाई वो नहीं करना है। ये असल में ये इनका दोगलापन है। ये बेचारे देखिए, चोर कभी भी चोरी करता है ना, अपनी लंगोटी छोड़ के भाग जाता है। तो इन लोगों ने चोरी तो की, रफादैन मतलब भाई वो ना करने के लिए खूब सारी मेरे भाई मतलब भाई वो हदीसें लाए, उनमें उसमें तावील किया, कयास किया, ठीक है, ज़ईफ हदीस को भी अपने लिए हुज्जत बना लिया। लेकिन चोर चोरी से भाई वो जाता है, लेकिन सीना चोरी से नहीं जाता है। तो ये एक जगह तो मेरे भाई बच गए, लेकिन वित्र की नमाज में इन्होंने अपनी लंगोटी छोड़ दी।
جو ثابت بھی نہیں ہے. وطر میں تیسری رکعت میں اس طریقے سے ایکسٹرا والا بھائی رفع کرنا، یہ تو دنیا کی کسی حدیث کی میرے پہ کتاب میں یہ عمل موجود ہی نہیں ہے. وطر کو مغرب سے الگ کرو. الگ کیسے ہوگی؟ ان دو طریقوں سے ہوگی. 3 رکعت وطر ایک سلام سے ایک قاعدے سے، یا 3 رکعت وطر 2 بار سلام سے یا 2 قاعدے سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رکھیں بھائی. جی پھر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کل. جی 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 اور بات کرنا ہے نماز کے بعد. جی جی آپ انشاءاللہ بالکل، اگر آپ کو ماشاءاللہ تحقیق کرنی ہے اور انشاءاللہ اگر ہم کو معلوم ہوگا تو ہم اللہ کی مدد سے آپ کو بتانے کی ہم کوشش کریں گے. باقی جو ہم آپ سے بتائیں گے اس کی ایک بار تحقیق آپ کر لیجئے گا کسی عالم دین سے، کیونکہ بھائی نہ تو میں عالم ہوں نہ میں مفتی ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا دائی ہوں، طالب علم ہوں. جو میں نے پڑھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی جو نہیں پڑھا ہے وہ میں عالم دین سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم.